Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Maya and I'm your English partner in your English learning journey. So friends, today's video is going to be very special for all of you. Because if you want to make your communication more effective and if you want to take your English level to the another level, then this video is for you guys. So please watch this video till the very end. Friends, if you are going to create a story, if you have to tell your past stories to anyone, if you want to share your experiences with anyone, then you need to add some phrases, some of the most important words to your communication to make your communication more effective. Yes, guys, because without these words, you will not be able to express yourself completely. So friends, in this video, I am going to talk about some of the important words, some of the important phrases, or you can also call them conjunctions. Yes, friends, here I am going to talk about conjunctions because conjunctions play an important role in our conversation. You need to know some of the important conjunctions like meanwhile, in addition to this, furthermore, because, as. Friends, there are so many conjunctions. If you will use some of them into your conversation, yes, guys, then you will definitely make your conversation, make your words more effective, guys. So it becomes very necessary to learn these conjunctions, to add these words in your conversation. Yes, because when we tell a story in Hindi, we use so many words like isliye, taki, jab se. It's the same words you have to add to your story in English also, guys. So you should know the meaning of these words in English, right? So that is why, friends, I am telling you again and again that you have to learn these words. You have to learn conjunctions, some of the very important conjunctions which are frequently used in conversations. So friends, at the end of the video, I will provide you a list of some important conjunctions and you have to use those conjunctions in your conversation. So guys, that's all for today. I will meet you in another video. And friends, if you like my videos, then please do not forget to subscribe my YouTube channel. I will meet you soon. Till then, goodbye. Take care. Bye-bye. So friends, here I'm going to tell you some of the important conjunctions and you have to use these conjunctions in your daily conversation. So our first conjunction is and or. इसको आप ज़्यादातर यूज़ करते ही हैं. And मतलब और या हम यूज़ करते हैं चॉइस देने के लिए. राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स. यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक. ये काफ़ी ईजी है, आप लोगों को पहले से पता होगा. नेक्स्ट कंजक्शन है बट, लेकिन, बल्कि, सिवाय. आप इसे लेकिन के तौर पर तो काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन इसके और भी सेंस निकलती है फ्रेंड्स. जैसे कि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स बट दे फाइट विद ईच अदर. तो इसका मतलब है राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं पर वे एक दूसरे से लड़ते हैं. तो यहाँ बट का मतलब पर है. बट को हम और सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, शायद आपको ना पता हो. आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू. मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने के, यानी कि बट को हम सिवाय के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. ही कैन ईट एनीथिंग बट चिकन. वो कुछ भी खा सकता है पर सिवाय चिकन के. ठीक है. कैन गो एनीवेयर बट और एक्सेप्ट योर होम. मैं कहीं भी जा सकता हूँ सिवाय तुम्हारे घर के. तो आप सिवाय को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट के लिए. तो नेक्स्ट है फॉर, एज, बिकॉज, सिंस. ये सब आपको पहले से आते हैं. इसका मतलब है क्योंकि, चूंकि. क्योंकि मैं बीमार था इसीलिए मैं नहीं आया. सिंस आई वॉज अनवेल, एज आई वॉज अनवेल. एक सेंटेंस और है, आई डिडंट कम फॉर आई वॉज अनवेल. फॉर को हम रीजंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था. फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए आप वीडियो को पॉज करके दोबारा समझ सकते हैं. ऑल्सो, इवन, ईदर, टू, एज वेल. इसका मतलब है जैसे ऑल्सो हम यूज़ करते हैं ना भी के लिए. मैं भी अच्छा हूँ. आई एम गुड टू. आई एम ऑल्सो गुड. इवन आई एम गुड. ईदर हम यूज़ करते हैं आई डोंट लाइक फ्रूट्स ईदर. इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स. ठीक है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है सो, हैंस, हैंस फोर्थ, दैट्स वाई. ये हम यूज़ करते हैं इसलिए के लिए. मैं गया इसलिए तुम आए. ठीक है. वैसे देखने में हैंस और हैंस वो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कोई इसका इतना मुश्किल मीनिंग नहीं है. आप इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से सेंटेंसेस में. जैसे कि आई वेंट सो यू केम. आई वेंट हैंस यू केम. आई वेंट हैंस फोर्थ यू केम. आई वेंट दैट्स वाई यू केम. नेक्स्ट है एज वेल एज. साथ ही साथ. इसका मतलब है राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं.
राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। काफी इजी है, आप इसको आसानी से अपनी सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट कंजक्शन है एज सुन एज। इसका मतलब है जैसे ही। एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट। जैसे ही वो आया मैं चला गया। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। लीव और गो एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, एज सुन एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज यूज कीजिए। एज फार एज, नेक्स्ट है एज फार एज, यानी कि जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं। एज फार एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रन। जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, एज फार एज माई स्टडीज कंसर्न आई एम ओनली 12th पास। जहां तक मैं जानता हूं उसकी पढ़ाई के बारे में, वो सिर्फ 12वीं पास है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो। इन सब का मतलब है यद्यपि, हालांकि या भले ही। काफ़ी मुश्किल लगता है हमें ये यूज़ करना, लेकिन काफ़ी आसान है। अगर आपको इनके मतलब पता हो तो काफ़ी सेंटेंसेस आप इनसे बना सकते हैं और इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। भले ही वह कभी स्कूल नहीं गया, फिर भी उसे सब आता है। इवन इफ ही नेवर वेंट टू स्कूल देन ऑल्सो ही नोज एवरीथिंग। नेक्स्ट है दो, ही नेवर वेंट टू स्कूल स्टिल ही नोज एवरीथिंग। हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गया पर फिर भी उसे सब कुछ पता है। Although he never went to school, yet he knows everything. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो और although वैसे सेम ही समझते हैं हम, लेकिन जब आप although यूज कर रहे हैं सेंटेंस में तो आपको although के साथ yet जरूर लगाना है, ये रूल है। ठीक है, तो although he never went to school, yet he knows everything. Although I am poor, yet I will try to help you with money. हालांकि मैं गरीब हूं पर फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट कंजक्शन है टिल द टाइम, बाय द टाइम और एज लॉन्ग एज। इसका मतलब है जब तक तब तक। जब तक मैं नहीं आता तुम मत जाना। टिल द टाइम और बाय द टाइम आई डोंट कम यू डोंट गो। ठीक है, जैसे हमारे स्कूल में भी कह देते हैं, टीचर्स बोल देते हैं स्टूडेंट्स को कि शाम तक असाइनमेंट सबमिट करो, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे टीचर्स कहते हैं यू हैव टू सबमिट असाइनमेंट बाय द इवनिंग। ठीक है, तो वहां पे भी हम बाय यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी विल नॉट ईट टिल राम डजंट कम। हम नहीं खाएंगे जब तक राम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे टिल का मतलब जब तक। एज लॉन्ग एज यू आर विद मी आई डोंट केयर। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई फिक्र नहीं। तो यहाँ पे भी लिखा है जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे परवाह नहीं। तो नेक्स्ट कंजक्शन है अनलेस और अनटिल। इसका मतलब है जब तक नहीं। फ्रेंड्स, जब भी आपको अपने सेंटेंसेस में नेगेटिविटी दिखानी हो, थोड़ा मतलब नेगेटिव सेंस में उसको यूज करना है, आप अनलेस और अनटिल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब तक मैं नहीं आता तुम मत जाना। अनलेस और अनटिल आई कम यू डोंट गो। ठीक है, जिसमें इसमें मत लगाया गया है, नहीं लगाया गया, तो यहाँ पे अनटिल और अनलेस आपको यूज करना है। नेक्स्ट है जब तक बच्चों ने नहीं पूछा मैंने उन्हें नहीं बताया। अनटिल और अनलेस चिल्ड्रन आस्क्ड आई डिडंट टेल देम। ठीक है, अनटिल और अनलेस चिल्ड्रन आस्क्ड आई डिडंट टेल देम। नेक्स्ट है वेयर एज और वाइल। वाइल आप काफ़ी यूज़ करते होंगे लेकिन वेयर एज कम यूज़ करते हैं, तो इसको भी यूज़ करना शुरू कीजिए। इसका मतलब है जबकि। मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि तुम्हारे पास 50। आई हैव ₹10 वेयर एज और वाइल यू हैव 50। जब राम की शादी हुई वो 25 साल का था जबकि दुल्हन केवल 18 साल की। तो हम बोल सकते हैं व्हेन राम गॉट मैरिड ही वॉज 25 वेयर एज द ब्राइड वॉज ओनली 18। और हम जैसे बोल देते हैं आई वॉज ईटिंग वाइल वॉचिंग टीवी। वाइल हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे 2 एक्शंस एक साथ हो रहे हों। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कंजक्शंस। आप इन कंजक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आदत डालिए इनको यूज़ करने की, अपनी कम्युनिकेशन को, कॉन्वर्सेशन को ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए। काफ़ी ईजी है, आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।